The class method overload. Here we define a function public void add function, public void add function. So two function I have defined here. The same function is used in a class, but if you notice here the parameter is different. int a, int b. Okay, so int a, so here parameter is different. Here parameter is different. Means we are using same function in a class more than one time. Okay, but with different data type. So now I am creating a object of class method overload m equals to new method overload m dot add. So when I call the function m dot add, I pass here 10 and 13. So 10 and 13 is stored in the A and B. It add the number and store in the C. Then again public void add double A and double B. So you are passing 10.3 and 20.7. That is stored in the double variable. That is added a number and print the result. Okay, so same function is used in a class more than one time, but its parameter is different. Now I run the file. It is showing you 23 and 31.0. Understood this one? अभिमन्यु ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So similar way, I go for method overriding. It is a static polymorphism. Another is dynamic polymorphism. Okay, so next concept is dynamic polymorphism.
Okay. Next is overriding. That already I give that some concept. Overriding is what? Like same function is used in the parent and child class, but having different functionality. एक फंक्शन पेरेंट में यूज होगा एंड सेम फंक्शन चाइल्ड में यूज होगा. ओके, तो पेरेंट में भी यूज होगा एंड चाइल्ड में भी यूज होगा, बट इट्स फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट. ओके, तो इसका क्या होगा ना, फंक्शनैलिटी इसका डिफरेंट रहेगा. मतलब पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसमें उसमें क्या होगा ना, कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड होगा किसमें, ना चाइल्ड क्लास में. The child class use same function that is present in the parent and it gives the new functionality. कुछ चीज पेरेंट का रखेगा और कुछ नया फंक्शनैलिटी उधर ऐड करेगा. So that concept is called as the method overriding when same function is used in parent and child class, but having what you can say like different functionality. Okay, so that is called as the method overriding. Okay, so I will write here. कौन नहीं हो रहा. ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है. Okay, so I explain here. Overload method. इसमें क्या होगा ना, the same function is used in parent and child class, but having different functionality. Means the parent class
function is redefined in the child class. पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास का फंक्शन में रीडिफाइन होगा. सोलह 8 तारीख कहाँ गया कल का. 24, 25, 26. चलो कल का नोट वीडियो में देख लेना. वीडियो भेज दूंगा. यस सर. This is the overload method. Okay, now I show a program of method overloading, overriding. So here we define a class employee. In employee class we have a function public void show function. यहाँ पर एक show function है. The man extends from employee. Man is also having a show function. Public void show function. The employee is having a show function. Man is also having a show function. Then in main method, okay, man is extends from employee, so man is a child class, employee is a parent class. For passing a inheritance, we are using extends keyword, and the parent class contain a show function, child class child class contain a show function. Means parent class function is redefined. Means
we are adding some kind of new functionality. Now here in this show function, for calling the parent class into the child class, we are using super keyword, super dot show. Super keyword is used if you want to call the parent class functionality or member to the child class. Super keyword is used. So super dot show. So we are calling parent class function here. Now we're creating a object of class. So class name is man. Man am equals to new man. So when I write am dot show function, then this child class function is called. When you are calling the child class function, automatically here the parent class function is present. Here parent class function is called super dot show. Now I run the file. First, it called the method of employee class. Then secondly, it called the method of man class. Understood? सर एक बार और समझा दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में एक फंक्शन है शो फंक्शन। अच्छा, म्यान क्या है ना, म्यान एक चाइल्ड क्लास है जो एक्सटेंड्स हुआ है पेरेंट क्लास से, एम्प्लॉय क्लास से। तो यहाँ पर भी हम शो फंक्शन यूज किए। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, पेरेंट क्लास फंक्शन को चाइल्ड क्लास में कॉल करेंगे। पेरेंट क्लास फंक्शन को चाइल्ड क्लास में कॉल करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट शो। सुपर इज a keyword which is used to calling the parent class functionality into the child class. तो जब हम सुपर डॉट शो लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पेरेंट क्लास फंक्शन इधर कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए ना, ओवरराइडिंग मेथड। यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाए, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हम यहाँ पर एम डॉट शो फंक्शन पास किए। जब हम एम डॉट शो फंक्शन पास करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इधर इधर ये पेरेंट क्लास फंक्शन सुपर डॉट शो पेरेंट क्लास फंक्शन को कॉल करेगा। जब पेरेंट क्लास फंक्शन को कॉल करेगा, इधर देखो ये दिखाया क्या, मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। उसके बाद जो चाइल्ड क्लास का जो फंक्शनैलिटी है वो दिखाएगा मेथड ऑफ मैन क्लास। क्लियर? यस सर। सब मीन्स हम एक मतलब कितने भी क्लास बना सकते हैं एक मतलब उसमें क्या है? कोई ऐसा होता है। मीन्स एक प्रोग्राम में कितने भी क्लास बना सकते हैं। जितना चाहो बना सकते हो, अनलिमिटेड, ऐसा कोई। सर ये क्लासेस का मतलब ऐसे मल्टीपल क्लासेस यूज क्यों करते हैं सर। देखो, एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस ऐसा यूज होता है, जैसे कि अभी आप एक सॉफ्टवेयर दे दिए, फिर कस्टमर का कुछ नया रिक्वायरमेंट आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया फीचर डालने के लिए दूसरा क्लास आप बनाओगे। तो दूसरा क्लास आप बनाओगे तो पेरेंट क्लास का फंक्शनलिटी भी रहेगा, तो उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके। ओके सर।
देखो a subclass method invoke the superclass method using super keyword। मतलब subclass का जो मेथड है वो पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करेगा बाय यूजिंग ऑफ सुपर कीवर्ड। द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड in a class to refer a superclass. The keyword super is used to refer to the members of superclass, both data attribute and method। ओके, तो आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो सुपर कीवर्ड का मदद से। पेरेंट क्लास का फंक्शन चाइल्ड क्लास में कॉल कर सकते हो। बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड यू कैन कॉल द वेरिएबल आल्सो। आप वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो इस तरह से बाय using of super keyword you can call all the members that is present in the parent class। Then behavior invoked doesn't have to be in the super class, it can be further uh, up in the hierarchy। बिहेवियर क्या है ना, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, जो फंक्शन पहला रहता है उसका फंक्शनैलिटी आगे आता है। जैसे कि आप यहाँ पर हम पेरेंट क्लास सुपर कीवर्ड आगे लिखे हैं सुपर डॉट शो, तो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है, जो फंक्शनैलिटी है वो आपको दिखा रहा है। अगर आप चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी रखकर सुपर आप लिखोगे तो सुपर का जो पेरेंट क्लास का फंक्शनैलिटी है वो बाद में दिखाएगा। ओके, अभिमन्यु समझ में आया? यस सर। मतलब ये जो प्रोग्राम है इसमें इसमें क्या होता है ना, अगर हम एम डॉट शो किए, अगर ये जो सुपर डॉट शो हम नीचे ला देंगे तो पहले क्या दिखाएगा, मेथड ऑफ मैन क्लास, उसके बाद वो दिखाएगा मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास। अब ये सुपर डॉट शो ऊपर है तो मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास आगे आएगा। यस सर। इसको हम हटा देते हैं, देखो। ओके, तो पहला दिखा है क्या, मेथड ऑफ मैन क्लास एम्प्लॉय क्लास। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर दिखा रहा था मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, मेथड ऑफ मैन क्लास। ओके, यस सर। वर्चुअल मेथड इनोवेशन, इट मीन्स वर्ड, जब हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो दैट क्लास इज गिविंग ए रेफरेंस टू द सेम क्लास। मतलब हम क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू न्यू एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ दूसरा चीज है, हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं मैनेजर को। एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू मैनेजर means we are creating a object of parent class and it is giving a reference to the child class। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लेकिन दूसरे क्लास को रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसा अगर आप लिखोगे और आप लिखोगे ई डॉट गेट डिटेल्स, इसका मतलब क्या है, ये जो गेट डिटेल्स मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है ना, मैनेजर। ये जो गेट डिटेल्स वो जो चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल करेगा, पेरेंट क्लास का फंक्शन नहीं कॉल नहीं करेगा। लेकिन
ये वाला यूज करने से वो चेक करेगा ये जो गेट डिटेल्स मेथड है ये दोनों क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, पेरेंट में होगा चाइल्ड में होगा, और चाइल्ड में कोई दूसरा फंक्शनैलिटी कॉल नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट की मदद से। सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास में गेट डिटेल्स है, मैनेजर क्लास में गेट डिटेल्स है, और सपोज शो डिटेल्स एक फंक्शन है। ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ये जो ई डॉट गेट डिटेल्स के मदद से हम जो फंक्शन चाइल्ड में है उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो चेक करेगा ये जो गेट डिटेल्स मेथड एम्प्लॉय में भी होगा, मतलब पेरेंट क्लास में होगा और चाइल्ड क्लास में होगा। लेकिन मैं और एक फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लाइक शो डिटेल्स। शो डिटेल्स सिर्फ चाइल्ड क्लास में है लेकिन पेरेंट में नहीं है। तो अगर पेरेंट में नहीं है तो ये फंक्शन अगर आप कॉल करेंगे तो एरर दिखाएगा। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम वर्चुअली मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा मतलब कि ये मतलब हमारे पास दोनों अगर सेम फंक्शन रहेगा तभी हम कर सकते हैं इतने हाँ, मतलब मतलब वर्चुअली। ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस। हाँ मेरे पास एक ऑफिस है, सपोज मैं रिलायंस हूँ, तो आप मेरा फ्रेंचाइजी लिए कि भाई मैं मेरा लोकेशन पर आपका नाम पर मैं दुकान चलाऊंगा। ठीक है, तुम दुकान चलाओ लेकिन मेरा ही प्रोडक्ट रहेगा, रिलायंस आटा रहेगा, रिलायंस वेजिटेबल रहेगा। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, कोई लोकल प्रोडक्ट यहाँ पर भेजने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर मैं चेक में जाऊँगा तो मैं इसको डिनाई करूँगा कि नहीं होगा। अगर आपको इसको भेजना है तो मेरा लोगो हटा दीजिए। तो एक चीज़ वही है, मतलब पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन है, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन है जो पेरेंट में नहीं है और इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ये जो ई ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर एरर दिखाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो इसको बेस करके हमारा जो कॉलिंग मेथड है और कलेक्शन जो है वो दो प्रकार का है, एक है हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कलेक्शन। ओके, तो ये दोनों चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, मेरा दूसरा क्लास है कल 10 बजे, फ्री हो? हाँ हाँ, कल सर हो जाऊंगा। एक्चुअली सर सुबह कभी कभी बाहर निकलना, सामान ना निकल जाना पड़ता है, इसलिए वो अच्छा, थोड़ा दिक्कत। ठीक है ठीक है। तो कल सर 10 बजे मैं इसको फिर से शुरू करूँगा, हाँ हाँ, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। ओके ओके, सर, ओके सर। और जो प्रैक्टिकल है वो दोनों करके भेजो। हाँ सर, वो मैंने कर लिया। मेरे को वो स्विच केस वाला थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, वो वाला कर लिया, ग्रॉसरी करके वाला। भेजो, मैं देखता हूँ, अगर कोई इनकरेक्ट होगा मैं आपको बताऊँ। ठीक है।